Assalamualaikum viewers. So I am your host Osama once again, and this time with the ninth episode of this podcast, Sports Banter. So as you know that the Pakistan has been eliminated from the T20 World Cup 2024, and the World Cup is still going on with the four semi-finalists, namely South Africa, Afghanistan, India, and England. So we'll keep doing podcast on the latest updates on the World Cup and what are the other teams doing. But meanwhile, we'll shift our focus back towards Pakistan. And today we are going to talk about this one myth or this one statement we have been continuously hearing over the last 1 week or so कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वो ख़राब है, मसले हैं स्ट्रक्चर के अंदर, या फिर इसमें मेरिट नहीं है, सिफारिशें चलती हैं. तो टुडे वी विल ट्राई टू डीबंक दिस होल myth, और यू कैन से दिस होल सिस्टम ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट इन पाकिस्तान के. हम ट्राई करेंगे कि आपको बता सकें कि सिस्टम आखिर है क्या, इसमें कितनी टीम्स हैं, कितने प्लेयर्स खेलते हैं, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, प्लेयर्स को कितना मिलता है, सपोर्ट स्टाफ को कितना मिलता है. तो विल ट्राई के हम आपके लिए पूरा सिस्टम जो है ना, पूरा सेटअप ये इलेबोरेट कर सकें. अच्छा, एंड मेरा इस पे एक क्वेश्चन है। ये कंफर्म है बात की स्टेटमेंट आई है कि अब टीम में सिलेक्शन तभी होगी अगर आपने डोमेस्टिक खेली होगी। जिस अच्छा, न्यूज में तो ये आई थी। ऑफिशियल न्यूज में तो ये आ रहा है ना। हाँ, न्यूज़ में आया, लेकिन इसका ऐसा मतलब है लॉट ऑफ आवर करंट टीम प्लेयर्स जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है डोमेस्टिक का, दे विल हैव टू गो बैक, जो कि उनकी ईगो हर्ट होगी, बट आई गेस जरूरी भी है उनके लिए खेलना। ज़रूरी भी है. और बाय द वे ये मतलब सुना तो है मैंने, लेकिन ऐसा कोई वो होता है ना कि ऑफिशियल स्टेटमेंट पीसीबी ने रिलीज़ की हो हम्म। या एक सेट क्राइटेरिया दिया हो, इस तरह का भी कुछ नहीं हुआ. ये तो बस वैसे सुनने में आ रहा है कि रिजवान, शहीन और ये बाहर हो जाएंगे और सारे प्लेयर्स जो हम्म। डोमेस्टिक वो आएंगे अंदर. लेकिन लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल स्टेटमेंट. सो we were talking about the domestic cricket. So before beginning, I would like to introduce my panel. So with me, I have the usual set of Shaikine Cricket and Nofil, Faraz, and Numeer. And also, I have Namra alongside today after missing out on a couple of podcasts. So welcome back, Namra. It's great to have you once again. So without any further delay, I would like to begin with the podcast. So first of all, I would like to go through the domestic structure across the world in the various countries. So we have four major cricketing nations in India, Pakistan, Australia, and England. So India has Ranji Trophy, Duleep Trophy, Vijay Hazare Trophy. Pakistan has Quaid Azam Trophy, President's Cup, and Hanif Mohammad Cup. Australia has the famous Big Bash League, then the Sheffield Shield, and then Marsh One Day Cup. And England has the likes of County Championship and by T20 Vitality Blast. So these various countries, they have different systems. For example, Pakistan currently has a 16-team system. Australia currently has a 6-team or 8-team system. Pakistan has both regional cricket and departmental cricket right now, while Australia only has regional cricket. So this is a rough overview of how these countries are doing right now. And roughly telling, these four countries, they have a pretty diverse or well-developed domestic system. Although other nations have domestic systems as well, for example, the likes of New Zealand, South Africa, but they aren't as comprehensive as the likes of these four. So without any further delay, I would center around the initial topic, and that was the problems in the domestic cricket of Pakistan. So coming towards the problems in domestic cricket of Pakistan, or you can say the reasons for the downfall of domestic cricket in Pakistan. So we have a number of reasons. First of all, there's this poor quality of cricket. Then there's this vague selection criteria, and then we have these below par remunerations or compensations, and then there's this poor quality of pitches, and then there's the poor standard of umpiring. So we will of course delve deeper into these reasons later on in the podcast. But briefly telling about the history of domestic cricket in Pakistan. So in 2019, Imran Khan infamously shunned the departmental cricket, and he was like only the regions would play. And later on in 2022, when the PTI government was overthrown and the coalition government of Shehbaz Sharif and co came in, they restored the departmental cricket. So Fraz, I would come towards you with the very first question for the night, and that is कि क्या इमरान खान ने सही किया था डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करके, और जो उन्होंने खत्म की थी उसके पीछे क्या रीजंस थे? अच्छा, फर्स्टली जैसे आपने अभी बताया कि जिस तरह पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो कंट्री का चेंज होता है, उसी तरह हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी थोड़ा इस तरह अफेक्ट होती है। तो सिमिलरली जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो ख़त्म कर दी थी। और ये
अपने प्लेइंग डेज से ही वो एडवोकेट थे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ डोमेस्टिक की रीजनल टीम्स होनी चाहिए, और वो भी 6। और वो ऑस्ट्रेलिया के पर्टिकुलरली शेफील्ड वाले फॉर्मेट से काफ़ी इम्प्रेस थे। तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान में भी जिस तरह बड़ी कंट्रीज में डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं हो रही, तो इस तरह पाकिस्तान में भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट का कोई उसका फायदा नहीं है। और वो चाहते थे कि 6 रीजनल टीम्स हो और वही एज ए फीडर एक्ट करें टू द नेशनल टीम। और दूसरी उनकी एक वजह ये भी थी कि जितनी कम टीम्स होगी उतनी competitiveness ज्यादा होगी और उसी तरह क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ेगी। और उनकी एक और रीजन ये थी कि मोस्टली प्लेयर्स जो है वो अपनी डिपार्टमेंटल क्रिकेट से वो समझते हैं कि उनकी जॉब सिक्योर हो जाती है, तो अपनी परफॉर्मेंस, क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस पे उनकी लाइफ में वो कंप्लेसेंट हो जाती है। तो ये जब डिसीजन उन्होंने लिया, काफी 2-3 सीनियर क्रिकेटर्स ने भी उनको समझाने की कोशिश की थी कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर पाकिस्तान में सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी लोग क्रिकेटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलते हैं और उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग ही थ्रू द हम्म डिपार्टमेंट्स होती है। कंसिडरिंग तो वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री यस, एंड लाइवलीहुड, वैसे ही जॉब्स का फैक्टर जो है यहाँ पे। यस। हाँ। और इसका फिर आफ्टर इफेक्ट यही हुआ था कि अराउंड 300 to 400 क्रिकेटर्स जो है वो दे लॉस्ट देयर जॉब, क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग इज थ्रू द डिपार्टमेंट क्रिकेट थी। और डिपार्टमेंट जैसे SNGPL, सुई नॉर्दर्न गैस और HPL हो गया, इस तरह के दो ये फेमस डिपार्टमेंट्स है। इस तरह इन डिपार्टमेंट से काफी क्रिकेटर्स भी हमारे नेशनल टीम में हो। तो उनका ये भी कहना था कि लाइक इस स्ट्रक्चर को लाइक टाइम लगेगा, ऑब्वियसली 3-4 साल में तो उस तरह चीजें नहीं डेवलप हो सकती। तो उनकी मेन रीजनिंग ये थी। बट आई गेस जैसे धमरा ने भी अभी कहा कि पाकिस्तान उस तरह, उनकी इकॉनमी भी उस तरह स्ट्रांग नहीं, तो इस तरह का डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करना जो एक 40 to 50 ईयर से एक सिलसिला चलता आ रहा है, तो उसको एकदम से खत्म करना, तो उसके ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट तो होगा, जो कि हुआ भी। ठीक है, ठीक है। तो निम्रा फराज कह रहे हैं कि इमरान खान ने उस टाइम पे डिसीजन लिया है कि उसके ऊपर बैकलैश आया ऑब्वियसली, ठीक है, और उसने टू सम एक्सटेंट वर्क किया, टू सम एक्सटेंट वर्क नहीं किया, लेकिन प्रेजेंटली वो जो हमारा ओल्ड सिस्टम था डिपार्टमेंटल प्लस रीजनल को मिला के दोनों टीम्स को इंक्लूड करने का, वो रीइंस्टेट हो चुका है। द ओल्ड सिस्टम इज बैक। तो अब मैं अगले मसले की तरफ आऊँगा कि यहाँ पे अगर आप सामने फिगर्स देखें तो जो रिम्यूनरेशन है या कंपनसेशन है प्लेयर्स के लिए वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर स्पेसिफिकली हम इंडिया से कंपेयर करें तो इसके हम्म का क्या कहना है कि ऐसा क्यों है कि कंपनसेशन यहाँ पे बहुत कम है, और इन केस अगर हम इसे इम्प्रूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? पहली तो बात, आई थिंक हम बीसीसीआई को साथ कंपेयर कर नहीं सकते बिकॉज दे लाइक द रिचेस्ट बोर्ड। ठीक है, टू बी फेयर आई थिंक द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द बीसीसीआई सीम्स फेयरली स्मॉल कंसिडरिंग दे आर प्रिटी रिच। आई डोंट नो, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, इतनी ज्यादा नहीं है। I mean, I was expecting a far higher number, and if I compare it to like Australian and England, वो जो भी compensations, remunerations तो fairly less है। ठीक है, and we say BCCI is like the richest board out there। तो आई वुड नॉट से कि ठीक है। आई थिंक लड़के मे बी इसलिए भी जान नहीं लगाते फर्स्ट क्लास में कि जब पैसे नहीं मिलने तो वाई पुट इन द एफर्ट इन द फर्स्ट प्लेस। तो उनका होता है कि कोई शॉर्टकट लग जाए तो हम सीधा टीम में ही आ जाए। बट देन अगेन वी डोंट नो कि हाउ मच be actually, since every department in Pakistan is ridden with corruption, आई एम श्योर पीसी से अपने प्लेयर्स वगैरह को दे। आपकी पीसीबी, आपकी क्रिकेट टीम को भी कितने कितने महीने पैसे नहीं मिलते। आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, 3-4 महीने नहीं मिले थे प्लेयर्स को पैसे। अगर आप उनके साथ ये हाल करते हैं तो फिर आप ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम्स का या उनका तो फिर आप छोड़ ही देना कि क्या। आई थिंक ओवरऑल ही पीस नीड अ रीहॉल, आई थिंक। और या मतलब कि आपके फिर, और आई थिंक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर जैसे आपने कहा वेक सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो आई थिंक फर्स्ट क्लास खेल के भी उनको नहीं लगता कि मे बी दिल गेट अ चांस
बिकॉज आपका कोई प्रॉपर है तो नहीं ना। आई मीन आई थिंक इंडिया हैज अ वेरी गुड सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर आप परफॉर्म करते हो फर्स्ट क्लास में फिर आपको चांस मिलता है। एज फार एज आई नो बुमराह प्लेड फर्स्ट क्लास अगेन, राइट? या जब वो इंजरी से वापस पिछले आए, पहले कुछ रिहैब अरसा किए पहले, आई उसके एम बाद नॉट उन्होंने श्योर। उनकी हाँ इंजरी हाँ हाँ, को comeback उसने किया खेली है ना। हमारे लड़कों की ईगो बहुत ऊपर चली जाती है। दे डोंट वांट टू टर्न बैक टू फर्स्ट क्लास अगेन। ये भी एक इशू है। आप अगर अभी लड़कों को कहेंगे तो मे बी दे उनके मुंह बन जाएंगे कि हमें दोबारा फर्स्ट क्लास क्यों खिला रहे हैं। पबजी द किंग तो कभी भी नहीं खेलेगा। कभी भी नहीं खेलेगा वो। अच्छा उसने नम्रा, अपनी टेक्निक। नम्रा आपने बीच में एक बात की कि बीसीसीआई से कंपेयर ना करें। बीसीसीआई एक बहुत बड़ा बोर्ड और रजिस्ट है। वो शुरू से तो ऐसे नहीं थे। देखें आपके साथ आजाद हुए, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है तो उनकी इनकम स्ट्रीम्स उन्होंने कुछ कुछ बनाई है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को या फिर कह लें कि पीसीबी को भी इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि अपनी जो रेवेन्यू अर्निंग स्ट्रीम्स हैं उनको काम करे, ठीक है, वो ज़्यादा बनाए ताकि कैश का इनफ्लो ज़्यादा हो। और कैश का, या आई बिलीव कि कैश का इनफ्लो जब ज़्यादा होगा ना तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, आपके लड़कों को जब पैसे मिलेंगे तो तब वो खेलेंगे आके। खेलेंगे भी। हाँ, एक ठीक है, लेकिन तो इस पे काम हाँ करना लेकिन चाहिए। और वहां मार्केटिंग पे मेरे ख्याल से इनको जरा पीसीबी को ना इसलिए अपनी ज्यादा थोड़ी करनी बेहतर चाहिए। करनी चाहिए। आप सही से ना तो स्ट्रीम करते हैं अपने मैचेस, कोई मार्केटिंग नहीं, किसी को कोई पता नहीं होता कि कौन सी कायरल आज़म ट्रॉफी कब चल रही है, दूसरी ट्रॉफीज मतलब कब चल रही है, सही से चलो पता तो ये नहीं सब चलता। ऑल ये ऑफ अ सब हाँ सडन जब आप बिल्कुल बिल्कुल सही रैंडमली कह रहे हैं, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं स्क्रॉल आप। कर रहे हो टीवी चैनल्स को तो आपको ओह अच्छा ये तो कायरल आज़म ट्रॉफी चल रही है। आई मीन वरना कोई कोई आपके सोशल मीडिया पे तो कोई अवेयरनेस ही नहीं है ना कि लोगों को पता चले कि कोई चल रही है कोई ट्रॉफी। दैट इज यहाँ पे आई मीन एक जिस सोशल चीज मीडिया को में बस इन्वेस्ट करने में कोई बुरी बात नहीं है अगर ये करें तो। सिर्फ एक ही हम सिर्फ अपने पीएसएल को ही एडवर्टाइज करते हैं, अच्छे से मार्केट हाँ। करते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं करते। मेरे ख्याल से बाकी जो हमारे ट्रॉफीज हैं, कायद आजम ट्रॉफी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी और बाकी जो भी हैं, ठीक है, उनको भी हमें अच्छे से करना चाहिए एडवर्टाइज और उनकी भी मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि उनके लिए भी हमारे पास अच्छे से रेवेन्यू हो और हम लड़कों को अच्छे से फैसिलिटेट कर सके वहां पे भी, इवन ग्रास रूट लेवल पे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके हम। यप। वैसे ना, अगर हमें बीसीसीआई में चाहिए पैसा कि होगा पर उनकी जितनी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वटेवर कंपटीशन उनका रिगार्डलेस है। दे आर अ बिग कंट्री। पता नहीं कितने डबल ट्रिपल हमसे ज्यादा लोग वहां पे compete कर रहे होते हैं फॉर अ सर्टेन स्पॉट। तो कंपटीशन उधर है रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग। तो बेशक कंपटीशन वहां पे है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। ऐसा हम्म, ऐसी कोई बात नहीं है। वसीम अकरम अलग यहाँ बात से है गया है, ठीक टैलेंट है, को वकार आगे यूनिस आने यहाँ से गया है। देना ना आने देना इज हाँ अनदर एग्जैक्टली स्टोरी। यही बात है कि टैलेंट है आपके पास, लेकिन वो कुछ अरसा में ऐसा हुआ है कि वो पॉलिश होके आगे नहीं आ पा रहा। हम्म। तो बस वी नीड टू वर्क ऑन दैट। ठीक है नम्रा, आपके सामने मैंने शाहीन अफरीदी के कैरियर स्टैट शेयर किए हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि फर्स्ट क्लास के उन्होंने 38 मैचेस खेले हैं, क्योंकि हमारे बेस्ट बॉलर यही है इस टाइम पे, हम्म। ऐसे ही है ना, जो कि हम हम्म। प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने ट्वेंटी जी नाइन जी। मैच खेले हुए हैं, 53 ओडीआईज हैं, ठीक है, सबसे सारे T20s हैं। ऑफ कोर्स वो तो इनको हम खेलते हैं सिर्फ वो देखते हैं। लेकिन सबसे हाँ। जो एक वो फिगर है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इन्होंने फर्स्ट क्लास से 38 खेले हैं। अब अगर इनको हम बाद में कंपेयर करते हम्म। हैं किसी और प्रीमियम फास्ट बॉलर से, लेट से अगर हम इनको कंपेयर करते हैं उनके साथ, स्टार मिचेल स्टार्क के साथ, हम्म। तो अगर हम मिचेल स्टार्क के देखें तो फर्स्ट क्लास मैचेस 140, ठीक है, दैट इज नियरली 6 टाइम्स। टेस्ट हम्म। मैचेस 89, दैट इज नियरली 4 टाइम्स। ओडीआईज 121, दैट इज नियरली 4 टाइम्स, सही है। और T20s इन्होंने सिर्फ खेले हैं 65, सही है। और शाहीन के कितने हैं? हम्म। 73, ठीक है। अब आप ये देखें कि चले मानते हैं कि शाहीन की अभी एज 24 है, मिचेल स्टार्क 34 33 के हैं, तो उस लिहाज से इनके भी आगे जाके हम्म। होंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिचेल स्टार्क के ओल्डर होने के बावजूद 65 इंटरनेशनल मैचेस हैं T20, और शाहीन ने वही 73 खेले हुए हैं। हम्म। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब एग्जैक्टली। इस तरह तो फिर मेरे ख्याल से क्योंकि शाहीन तो हमारे एक वो तो लेट्स बी ऑनेस्ट इन द रीसेंट ईयर्स वैसे भी हमारी पीसीबी का फोकस भी T20 रहा। कितने हमने वनडेज अभी खेले हैं? लास्ट हमने कब खेला है? लास्ट ईयर खेला है एंड आई थिंक दैट वाज। अब मैं हमें 2025 तक आई डोंट सी कि वी आर गोना बी प्लेइंग एनी वनडेज। हमारे को स्केड्यूल तो नहीं हुए हुए इस साल के लिए। वो ये साल के एंड बात पे तो हैं क्योंकि चैंपियंस
हाँ साल के एंड पे, बट दैट्स लाइक मे बी व्हाट लाइक वंस और ट्वाइस अ ईयर, ठीक है ना। लॉन्गर फॉर्मेट्स खेलने की अब लड़कों को आदत ही नहीं रही, टेस्ट खेलने जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आदत ही नहीं है पूरा पूरा दिन बॉल करने की। बैटिंग तो हो जाती है बट बॉलिंग नहीं फिर इनसे होती। ये आई थिंक आई वुड से कि ये पीसीबी की गलती है कि वो सही से अपने जो है ना मैचेस प्लान नहीं करती, ताकि क्योंकि अब देखिए लड़के जरा से ज्यादा 4 ओवर्स के ज्यादा बॉल करने के लिए आते हैं तो कभी कोई इंजरी हो जाती है, कुछ हो जाता है। उनको खेलने की आदत ही नहीं रही है, बॉल करने की आदत ही नहीं रही। चार चार के बाद देर लाइक ओके बस हमारा काम हो गया। हाँ, ना वो एंड्योरेंस है ना वो स्टेमिना हाँ उनका ठीक है। एग्जैक्टली और इवन मतलब कि जो अगर आप, आप आई बैट्समैन, एम अ बिग शाहीन फैन, लेकिन 24 साल का लड़का अगर इतनी जल्दी जो है ना मतलब कि थक जाए और जस्ट डजंट मेक सेंस टू मी। अगर आपका एंडरसन 42 राइट एंड ही कैन बॉल इन टेस्ट मैचेस, तो फिर शर्म की बात है कि अर्ली 20s के लड़के नहीं कर सकते। तो वो आई गेस वजह यही है कि 4 डे क्रिकेट ये खेलते नहीं है, तो उस हाँ वजह से इनकी जो मैच फिटनेस है वो 4 ओवर्स भी मुश्किल से ही इनसे होते हैं। तो बाहर गलती T20 से जाके दो फिर तीन गलती से 2-3 टेस्ट मैचेस रख के फिर 50 T20s खिला देते हो आप, तो ये वो ऐसे उनका कोई स्टैमिना ही नहीं रहता। ठीक है नौफिल, अब आपके साइड में आऊंगा। ये आपके सामने जो है ना, जो हमारी रिसेंट काइजर 2023 ट्रॉफी हुई है, सही है, खत्म हो चुकी है। तो ये कुछ ना हमारे पास बैटिंग के स्टैट्स हैं। तो इसमें टॉप पे साजिद फरहान है, सेकंड पे सरफराज अहमद है, इन्होंने 697 रन किए हैं। साजिद फरहान ने 847 रन किए हुए हैं। थर्ड पे असद शफीक है। ठीक है, बाकी सारा आगे नाम आ रहे हैं आपके सामने। तो मेरे यहाँ पे आपसे दो सवाल हैं। नंबर वन सवाल तो ये है कि क्या इन ट्रॉफीज के अंदर जो एजेड प्लेयर्स हैं, स्पेसिफिकली अब 35, इनको खिलाने का कोई फायदा है? क्योंकि टेक्निकली ये लोग लॉन्ग टर्म तो है नहीं पाकिस्तान के लिए एट दिस स्टेज। नंबर वन ये, और फिर नंबर टू ये कि जो प्लेयर्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ये साजिद फरहान जैसे हैं, ठीक है, अब इन्होंने 84 की एवरेज से स्कोर किया है। तो ये करने के बाद भी अगर ये लोग टीम में नहीं आ रहे, तो फिर ये कहाँ से मोटिवेशन लेके आए कि यार हमने ये खेलना है फर्स्ट क्लास क्रिकेट? तो ये मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला तो वो एज वाला सवाल है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, अब कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर गारंटी नहीं है कि जी आप परफॉर्म करो तो आप चले जाओ। देखें, ये साहबजादा फरहान, मैं तो पहली दफा इनको देख रहा हूँ कि जी ये इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और ये ना क्रिकेट टीम में ना रिजर्व ना कुछ। तो इनमें से कोई भी आप प्लेयर देख ले। अब देखिए, साइम अयूब भी एक नजर आ रहे हैं जो हैं वन ऑफ द न्यूअर प्रोस्पेक्ट्स। बाकी सब तो इधर देर रिटायर्ड और या फिर उनका नाम पता ही नहीं है। तो नहीं अगर नहीं, देखें एक जी, एक नीचे है हुसैन 9th सल्लत, नंबर पे। अहमद 9th और हसन। एक नंबर पे है, है शायद एक। ओ अच्छा, 13 में से एक है, सबका चलो ठीक फेवरेट, है। सबका चलो फेवरेट, ठीक है, 13 में सबका से एक। फेवरेट। सबका फेवरेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 13 में से एक। देर नहीं, ये क्या एवरेज है? तो वैसे अगर देखें, साहिबजादा फरहान प्लेस फॉर एलक्यू, ही वाज डिसेंट लाइक लाहौर कलंदर्स के लिए थोड़ा। तो इन्होंने T20 आईज भी खिलाए थे, बट आई गेस हाँ इसको कभी मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया था, और हाँ वो हालांकि दे ओपनर दे है। केप्ट शिफ्टिंग हिम। हाँ हाँ नहीं तो वर्ल्ड कप में तो नहीं ना गया ना फिर। तो देखिए, वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट मैंने खेला टूर्नामेंट्स भी, में, एलक्यू के लिए खेल लिया, यार लेकिन वहां पे आप वर्ल्ड कप में नहीं आ रहे, फिर क्या क्या फायदा है खेलने का सारा तो डोमेस्टिक? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अगर देखें जी, आपको उनकी गारंटी दें कि जी अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप आगे जाओगे, हम आपको कंसिडर करेंगे, तो या फिर कायदे आजम ट्रॉफी के लिए लोग और खेलने के लिए आए और इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगी कायदे आजम ट्रॉफी की। लेकिन आप ये नहीं गारंटी नहीं कर रहे स्पॉट, तो वो क्यों आके खेले? और दूसरा सवाल, पहले तो एजिंग का सवाल था, दूसरा क्या सवाल था मुझे भूल गया। दूसरा मेरा सवाल था कि ये जो एजेड प्लेयर्स हैं, इसको जैसे सरफराज अहमद 37 के थे, ठीक है, फिर एक नाम हम्म, था 31 के। तो एजेड प्लेयर्स को बिल्कुल। खिलाने का फायदा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म तो है नहीं वो। मतलब हमने अगर इनके देखिए जी, अंदर, अब अभी के लिए तो ऐसे लग रहा है कि जी शुगल मेले के लिए खेल रहे हैं कायदे आजम ट्रॉफी। तो गारंटी ना स्पॉट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, तो क्यों ना खेलें वो जाके। अगर आप किसी की प्लेस ले ही नहीं रहे, और देखिए, अगर होता आपका कोई प्रोस्पेक्ट कि जी जो भी आप टीम में कायदे आजम ट्रॉफी में आप खेलोगे तो आप जाओगे आगे क्रिकेट टीम में, तो फिर आपको ये रिटायर्ड प्लेयर नहीं लेंगे आपकी स्पॉट, और फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो है ही नहीं गारंटी, तो आई डोंट थिंक कि उन्हें हटाना चाहिए। या फिर वो कायदे आजम ट्रॉफी को बदलें, फॉर्मेट को, कि जी आपको कंसिडर करेंगे तो फिर रिटायर्ड प्लेयर्स को नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अभी के लिए आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस एट ऑल। आई बिलीव कि अगर अभी के लिए खेल रहे हैं तो उनको खेलने देना चाहिए, लेकिन इन फॉर फ्यूचर यही मैंने हमें कहा। अपना
फॉर फ्यूचर हमें अपना सारा फोकस जो है यंग हमारी जो यूथ है, यंग जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके ऊपर रखना चाहिए। एंड आई बिलीव कि बिल्कुल। अगर हम ज्यादा फोकस यंगस्टर्स पे करेंगे ना, तो आप हाँ खुद जी। ही देखेंगे कि जो एजेड है ना प्लेयर्स, उनकी जगह ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यंग प्लेयर को, एक अच्छा यंग प्लेयर अगर होगा तो उसके साथ आपका जो 37-40 का जो प्लेयर है वो कम्पीट नहीं कर सकता। ठीक है, जितना बिल्कुल मर्जी ऐसे भी ही है आप सर। कोशिश कर लो, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन आपका एज फैक्टर कहीं ना कहीं अपना आप दिखाता है, आपके रिफ्लेक्स स्लो होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात की सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा निम्रा, आपके सामने हमारे प्रीमियम लेग स्पिनर ऑलराउंडर मौलाना शादाब खान आ रहे हैं, इनके कैरियर स्टैट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने कुछ देर पहले वो शहीन की देखी है कैरियर ट्रजेक्ट्री, उन्होंने कितने खेले हैं, फिर हमने स्टार्ट शाहीन के किया। फिर भी स्टार्ट्स थे आप तो इनके अगर यहाँ फर्स्ट पर यार से उसामा, आप इनका तारुफ 17। ऐसे भी करा सकते थे कि ये वो, 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 पबजी के बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट ही है, हाँ बेस्ट ही है। नहीं, मेरा मेरा सवाल अब ये है सिर्फ कि 6 टेस्ट खेले हुए हैं। गुड इनफ। 17 ओह फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, सिर्फ 6 टेस्ट खेले हैं। टोटल मिला के बनते हैं 23 मैच है। 23 मैच खेल के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे लेग स्पिनर, इनकी लाइन सेट हो जाएगी, कैसे हो सकता है? कैसे जस्टिफाई कर आई सकते मीन हैं? एक टाइम पे वो ही वाज एट हिज पीक, बट अब जब नहीं है तो फिर उसको वापस खिलाए ना। क्यों इतनी देर से टीम में रखा है कि 2 साल हो गए तकरीबन, ही हैजंट बीन परफॉर्मिंग एट ऑल। आई थिंक 2 इयर्स तो राउंड अबाउट हो ही गए होंगे, ही हैजंट परफॉर्म्ड नहीं, एट ऑल। ज्यादा हो वो गया। 2021 में लास्ट टाइम इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। हाँ, नॉट विद द बैट और विद द बॉल। बॉलिंग तो खैर दोनों ही आई थिंक कैटेगरीज में ही हैजंट बीन परफॉर्मिंग। एक आध दफा जी पीएसएल में एक मैच में परफॉर्म कर देते हैं, फिर लोग वो खुश हो जाते हैं जो उनके फैंस हैं। समझ नहीं आई उनकी इंक्लूजन की, बस यही समझ आती है कि दोस्ती बहुत अच्छी है, और कोई वजह नहीं है समझ आती। क्राइटेरिया यही है तो लाए फिर ना सकले मेरे ख्याल से। इनके फादर इन लॉ इनको भेजें, फर्स्ट क्लास खेलें थोड़ी सी जरा। समझाना चाहिए उनको कि बेटा कुछ समझाना चाहिए। आखिर कब तक हाँ, डिफेंड करेंगे? आई थिंक सारे शाहीन शादाब सबको, बॉब्जी सबको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। हाँ, अपने जूनियर्स के साथ खेल के अगर आपकी गेम इंप्रूव हो रही है तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसा शर्म की बात जूनियर है। ज्यादा जान लगा रहे हैं अभी, जो आपने साहिबजादा फरहान देख लें, ही सीम्स वेरी केपेबल, ही नीड द उसके चांस। स्टैट्स काफी अच्छे हैं। आई थिंक ही इज एन ओपनर राइट, मतलब कि उसकी ओपनर पोजीशन ही बनती है राइट। हम्म। ठीक है नोफिल, अब मैं जरा थोड़ा वापस आना चाहूंगा जी। साइड के जो मसले थे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो हाँ जी। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के। तो उसमें एक इशू ये हम्म। था हमारे पास के जो हमारे अंपायर्स हैं यहाँ पे, वो कितनी क्वालिटी के नहीं है, ठीक है, क्वालिटी अंपायरिंग नहीं हो रही, डिसीजंस कॉन्स्टेंटली गलत दिए जा रहे हैं, या फिर कोई इतना अच्छा कह ले कि यहाँ पे वो जो हमारे वो होते हैं सिस्टम्स, डिसीजन रिव्यू सिस्टम्स वगैरह, टेक्नोलॉजी जो आपकी यूज़ होती है यहाँ पे इतनी वो प्रोफेशन नहीं है। तो आपके ख्याल से उसका कितना रोल है डोमेस्टिक क्रिकेट की तबाही के अंदर? और इन केस अगर हमें उसे इम्प्रूव करना हम्म। है, ठीक है, कि हम कहें कि ऑफिशिएटिंग इम्प्रूव हो, तो इसको हम हम्म। कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, पहले आपकी तो, स्क्रीन सही से शेयर नहीं शायद। हाँ, लेकिन मैं फिर भी जवाब दे देता हूँ। क्या उसे कहते हैं, पहले तो देखिए जी, आप एम्पायर्स की सैलरी को इंक्रीज करें। जो आपने मैंने देखे थे, आपने जो लिंक सेंड किए, रेड थ्रू दोस्त, लेकिन उनकी सैलरी इतनी कम है कि उनको इंसेंटिव ही नहीं है अपनी देखिए एम्पायर की भी परफॉर्मेंस होती है, तो दे आर नॉट इंसेंटिवाइज टू बी बेटर परफॉर्मिंग एट देयर जॉब। तो अगर वो पैसे इतने मिल ही नहीं रहे, तो वो बंदा क्यों इतना खज्जल खराबी करे और अपना अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे। तो पहली तो बात ये है कि जी आप उनके बढ़ाएं, उनकी पे बढ़ाएं। और दूसरा, आई डोंट नो कि पीसीबी के हैं एम्पायर कोचेस और इस तरह करके, तो आई थिंक देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ हम्म, ट्रेनिंग फॉर, उसमें भी थोड़ी सी ट्रेनिंग और कंपटीशन होना चाहिए। बिल्कुल मैं ये बोलने लगा था। 5,000 दैट्स नॉट इवन मिनिमम वेज। अगर ये बिल्कुल। एक्चुअल है मतलब के अमाउंट, आई मीन कंसिडरिंग मिनिमम वेज या कितनी है, 30 समथिंग है राइट, अब जो होनी चाहिए। हम्म
यार तो that should be 37,000 increased अकॉर्डिंग टू द exponentially लास्ट और अगर क्या यहाँ जो पे रिसेंटली आया है आपके बजट आपका। इंटरनेशनल और एलीट पैनल के आपके वो एम्पायर्स, इंटरनेशनल को आपका तकरीबन 1,32,000 मिल रहा है, एलीट वाले को 69K मिल रहा है, ठीक है। हम्म और ये इनकी रिटेनिंग की बिल्कुल फीस है, चलो ठीक है टूर्नामेंट हो रहा है तो आपको इस टूर्नामेंट में रिटेन रखेंगे, उसकी आपको फी मिल जाएगी एक। और जो इनके अलावा कोई हम्म एम्पायर उसकी रिटेनिंग की फी खाली 25,000 है, ठीक है। हम्म, तो वो लेट्स से अगर यहाँ पे लेट्स से डीएचए में वो रहता है एम्पायर, जो कि एक रॉन्ग क्लेम है और उसे काफी आना मैच के लिए, तो उसकी ये सारी सैलरी तो, ये रिटेनिंग फी तो उसकी वहीं लग जाएगी, ठीक है। हम बिल्कुल ऐसे ही अगर आप ये 25,000 यूएसडी कह रहे हैं ना, फिर रह सकते हो, डीएचए में वरना नहीं रह सकता। 25,000 में कहाँ वो आधे दिन का रेंट देगा, आधे दिन का, तो फिर एक और दिन का दूसरी भी नहीं। बात ये अब देखिए शाहजहां जी में रहता है। फिर अपना जो पाकिस्तान है वो करप्शन तो पहले ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। तो देखिए अब पैसे इतने कम मिल रहे हैं, तो अगर मैं एम्पायर हूँ, मुझे इतनी कम मिल रही सैलरी, तो कोई आके दूसरी टीम का कह दे कि यार थोड़ा सा मैं तुम्हें दे देता हूँ कोई 5-10 हज़ार रुपए, तो मेरा ये ना नो बॉल ना काउंट करना यार, छक्का जो भी हो रहा है ना तो मान जाना। तो फिर हाँ मैं क्यों ना उसकी बात को एग्री करूँ कि जी बिल्कुल आउट है जी, जो उसने कहा बैट्समैन है वही चल रहा है काम। तो ये करप्शन का भी एवेन्यू आ जाता है इसमें। तो देखिए जी पैसे बहुत है पीसीबी के पास, वो थोड़ा सा गौर करे अपने एम्पायर्स पे, तो क्या पता आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और बेहतर हो जाए। लेकिन अब ये तो पीसीबी पे है ना जी, अब क्या हो सकता अच्छा ये मुझे फनी अगर बात लगी, एक्चुअली 4 और मैच की 5 स्टार, आपकी 5 स्टार मैच कौन की सी आपकी अकोमोडेशन हमारे कभी लड़कों को मिली है? फिर मुश्किल ही। बेचारों को 5 स्टार अकोमोडेशन मिल ही ना जाए, गए तो हैं अमेरिका। वो भी होटल चेंज कराया था। जैसे समी असलम एक प्राइम एग्जांपल है हमारी, वो जो यूएसए, आई थिंक वो भी यूएसए यूएसए जा चुके हैं समी असलम, उसने शिफ्ट काफी हो गए साल हैं। यहाँ पे तो परफॉर्म इस तरह किया। आपको लग रहा है और भी प्लेयर्स, हाँ, और भी प्लेयर्स इसी तरह, हाँ, और भी प्लेयर्स इसको फॉलो करेंगे इसका बात, या क्या लगता है अगर अगर इसी आप तरह मेरे ही को बात कोई करें तो मेरा इंसेंटिव मेरा फाइनेंशियली ना मेरा हो? ये आंसर होगा इसके ऊपर कि इफ़ यू आर समी असलम और एनी अदर प्लेयर लाइक समी असलम, जो कि कह लें कि साल हर साल डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आप देखते हो कि यार फिर भी कोई सिलेक्ट नहीं मुझे किया जा रहा, और सिलेक्ट करना वो दूर की बात है, अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो, नहीं आ पा रहे टीम में, तो आपको कोई रीज़न तक नहीं दी जा रही, ठीक है। एक तो होता है ना कि आपको रिजेक्ट करें, वो कहें कि आपकी टीम में जगह नहीं बन रही, आप ओपनर है, ओपनर बहुत सारे हैं हमारे पास, आप ऑलराउंडर नहीं है, हमें वो चाहिए इस टाइम पे, तो आपको एक रीज़न मिले। पाकिस्तान में करंटली ये है कि यहाँ पे सिलेक्शन तो ना होना एक अलग बात है, यहाँ पे सिलेक्शन ना होने की रीजन भी नहीं दी जा रही, इवन दो यू आर टॉप परफॉर्मर इन डोमेस्टिक के अंदर। तो इफ आई एम समी असलम और मैं देख रहा हूँ कि यार ये नहीं 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 मेरी सिलेक्शन हो रही, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं साल साल परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आई वुड डेफिनेटली लीव फॉर यूएस, या कहीं मुझे और अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर क्रिकेटर की हम देखें शेल्फ लाइफ, तो वो मेच्योर करता करता तकरीबन मेरे ख्याल से अपनी पीक पे आता है वो 29-30 तक, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल विंडो देखें तो मेरे ख्याल से 24 साल से लेके 35 साल तक क्रिकेटर की विंडो होती है कि वो खेल सके, उसमें कमा सके, ठीक है। अब अगर उसमें ही बैठ के वो भाई वो 4-4 4 डे क्रिकेट खेल के 60-60 हज़ार कमाएगा, 70,000 कमाएगा, ठीक है, तो उसमें तो फिर उसकी कमाई कोई नहीं होनी ओवर इज लाइफ टाइम, ठीक है। और साथ बिजनेस तो वैसे नहीं कर सकता वो, लेट्स से क्रिकेटर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, उसने टेस्ट मैच खेलना है 4 दिन वाला, तो उसमें उसके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो साइड पे कोई और काम कर सके, रोजी का उसका जरिया भी यही है, इससे आ भी कुछ नहीं रहा, और ये करके प्रोग्रेशन भी कोई नहीं हो रहा आगे। तो फिर ऑब्वियसली इफ आई एम समी असलम, तो आई वुड डेफिनेटली टेक द यूएस वाली ऑप्शन कि हाँ भी वहाँ जाता हूँ, कम से कम बेशक नेशनल टीम के लिए ना खेलूँ, एटलीस्ट अपना फ्यूचर तो बना लूँ, अपने बच्चों का फ्यूचर तो बना लूँ। लेकिन उस्मान खान जैसे लोग उल्टा करते हैं। उस्मान खान को पता नहीं किसने किसने गाइड किया है, किसने नहीं गाइड किया, मुझे तो लगता है कि वहावरे आज ने उसको कुछ चूना लगाया है कि पुत्र तू आजा, तेरे वास्ते 2-3 प्लॉट दिए तुझे, बस आ जा एक बारी, कुछ ना कुछ गेम हुई है, वरना पता नहीं अच्छा खासा उसका लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट था यूएई के अंदर, सब कुछ छोड़ छाड़ के हाँ यहाँ गया। एग्जैक्टली, मुझे समझ ही नहीं लगी कि उसने किया क्या है अपने साथ। और उसको आई थिंक अब रखेंगे भी नहीं इस वर्ल्ड कप के बाद, आई थिंक ही इज गॉन। खत्म हो गया है वो तो, एक तरह का वन नाइट हाँ स्टैंड आगे, बस आए और गए, काम खत्म, पीछे कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि उसकी वो टेक्निकल शॉट्स तो है नहीं कोई, वो ऐसा कोई प्रॉपर बैट्समैन तो है नहीं, वही जितना मैं देखा है टुल्लर टाइप बैट्समैन था, वो लग गई तो लग गई, उसी को उसने दो पीएसएल के 100 मारे हैं, और उन 200 पे ऐसा पिघले हैं हमारे वो सिलेक्टर्स, उन्होंने कहा यार सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स गए भाड़ में, हमारा उस्मान खान जानिसार यही आएगा टीम के अंदर, उसको वहां यार से। उसने जो आपके मैचेस में उसमें बैटिंग की है, उसमें
उससे तो ऐसे लग रहा था कि कुछ उसके बैट पे बॉल लग भी नहीं रही थी, एज इफ कि आपको ना मतलब कि किसी ने पहली बार बैट पकड़ा हो जिसको खेलना भी ना आ रहा हो, इस तरह का लग रहा था। सॉरी, मैं शायद बहुत हार्श वर्ड्स यूज कर रहा हूँ हमारे अपने बिलीवर्ड उस्मान खान के लिए, लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे इसको आता भी नहीं है और ये पता नहीं क्यों इसको लेके आ गए हैं बस। ठीक है। अच्छा नम्रा, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, और वो ये है कि चले हमने बात कर ली अच्छा, कि ये एक चीज है और मेरे जी जी फराज बोले 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 फराज। जो डोमेस्टिक में भी, और जो बाउंड्री साइज छोटा कर देते हैं पीएसएल में, जैसे बाउंड्री साइज छोटा कर देते हैं और क्वालिटी ऑफ पिचेस जो है, मतलब प्योर ही बैटिंग फ्रेंडली, डेड उस वजह से फ्लैट भी पिचेस, हाँ, हाँ। इनको जो डोमेस्टिक पिचेस और हैं वो थोड़ी इसमें चेंज अपनी करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके जो हैं बैट्समैन जो हैं और इवन बॉलर्स को भी ना थोड़ा सा डिफरेंट पिचेस हाँ, पे खेलने की आदत हो। वो कहते हैं बाउंसी ठीक है। पिचेस पे नहीं करते, वो सिर्फ फ्लैट पिचेस हाँ, पे करते हैं। इसलिए बैट्समैन तो हमारे जब बाहर जाते हैं तो वो उनसे फिर खेला नहीं स्ट्रगल। जाता, ये राज स्ट्रगल भाई हो, करते बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही यार। बिल्कुल। ठीक है नमना, मेरा जो सवाल था बेसिकली उसका फराज ने खुद ही पहले ही आंसर दे दिया। सवाल असल में यही था कि एक जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो भी एक रीज़न है कि दैट्स अ पुअर क्वालिटी टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, डोमेस्टिक अगर आप मैचेस देखो तो कोई बैट्समैन आराम से मुंह उठा के 150-200 करी जा रहे हैं। ठीक है, बॉलर्स पिट रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं आ रहा, 5-5 6-6 स्कोर हो रहा है डोमेस्टिक के अंदर। ठीक है, वही अगर आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ पे खेलते हैं तो आपकी टीम से 200 नहीं हो रहा होता मुश्किलों से। खेला नहीं जाता, हाँ। इसके बारे में फराज ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि पिचेस का मसला है। इसके अलावा आपको लगता है कि पिचेस के अलावा कोई और हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर मसले हैं, मतलब कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पुअर क्यों है? ओवरऑल है, बट आई थिंक आई ऑलवेज, हाँ ओवरऑल है, बट लाइक फराज सेड, हमारा आई थिंक मेजर फैक्टर ये है कि हमारे बैट्समैन एटलीस्ट थ्राइव नहीं करते क्योंकि उन्हें डिफरेंट कंडीशंस में खेलने की आदत ही नहीं है। आप उनको फ्लैट ट्रैक बुलीज बना देते हो, ठीक है, और वो उसी पे उनको मिल जाती है तो वो खेल लेते हैं, बट अदर देन दैट कोई बाउंसी पिच हो कुछ हो तो जीरो। बिल्कुल भी आपने नहीं अभी होता। देख लिया है, यूएसए वाली थोड़ी टफ पिच थी न्यूयॉर्क वाली, एंड व्हाट डिड दे डू देयर, उनके बैट पे बॉल ही नहीं आ रही थी, उनसे उनको समझ ही नहीं लग रही थी। तो जो है ना, उनसे आई थिंक उनसे आई डोंट 120 चेज नो, नहीं हो रहा मुझे था। लगता है कि हर जगह दुनिया में फ्लैट पिच होगी, हमें इंडिया के अलावा आई डोंट थिंक दे ऑल आर इनटू यू नो डेड पिचेस इस तरह करके। ठीक है ठीक है, चलें, we will come towards the closure of this podcast. So viewers, so we decided, we tried to dissect the reasons behind the downfall of domestic cricket in Pakistan. So still, as you can see, the major reasons are poor quality of cricket, vague selection criteria, poor standard of umpiring, poor quality of pitches. And apart from that, we tried to discuss any steps or measures that can be taken to improve upon these problems, or या at least इनको थोड़ा कम किया जा सके। तो हमने ऑब्वियसली अपनी सजेशंस दे दी हैं। नो लेट्स सी कि जो हमारी क्रिकेटिंग मैनेजमेंट है या हायर लेवल फ्रेटर्निटी है वो क्या कर सकती है इस बारे में। वंस अगेन, जैसे कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि सारी नजरें जो है ना मोहसिन नकवी साहब पे हैं कि अब वो वही अपनी जो सर्जरी करते हैं किस तरह शुरू करते हैं। ठीक है, तो सर्जरी में हमने, अगर आप लोगों को याद, हमने बात की थी कि मेजर माइनर सर्जरी, ठीक है, तो प्लेयर्स को हटाने तक का कोई मसला नहीं, हटा देंगे, मसला कोई नहीं है। लेकिन मेजर मसला ये है कि जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा नीचे से, जब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तो आपका जो क्रिकेटिंग का पूरा वो एक ढांचे है, पूरा चीज़ है, वो नहीं खड़ा हो सकता और आपकी एक फॉर्मेडेबल वर्ल्ड क्लास टीम नहीं बन सकती। ठीक है, लेट्स से अगर हम बाबर को निकालते हैं, शहीन को निकालते हैं या रिजवान को निकाल देते हैं, निकालने का मसला नहीं है, हम सुबह कहेंगे यार तुम लोग बैठ जाओ, तुम लोगों को रेस्ट करवा रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज द कि उनको निकालते हैं तो हम किसको लेके आएंगे? और सैड रियलिटी इसके, हमारे पास फिलहाल कोई क्वालिटी पूल है ही नहीं। ठीक है, हमारे पास प्लेयर्स हैं नहीं जिनको हम लेके आ सकें। चलो, सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर हम यूनिफॉर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, मेरिट पे लेके आते हैं, तो हमारे पास 10-15 प्लेयर्स ऐसे हैं जो परफॉर्म करें। लेकिन ओवरऑल देयर नीड्स टू बी अ मैसिव इम्प्रूवमेंट एज फार एज द डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड। अब उसमें ऑब्वियसली क्रिकेट क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, एक हमें यूनिफाइड सिलेक्शन क्राइटेरिया चाहिए, फिर हमें अंपायरिंग के स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करना है जिस तरह नौफल ने कहा था, फिर हमें जो अपनी पिचेस है उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। जैसे कि नंदा ने कहा कि हमें सिर्फ फ्लैट पिचेस नहीं चाहिए कि जहाँ पे सिर्फ बैट्समैन आके छक्के चौके मार रहे हो और बॉलर्स की फेंटी लग रही हो। और लास्टली हमने ये रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन की बात की थी। ऑब्वियसली हम बीसीसीआई का मुकाबला भी नहीं कर सकते एज अ बोर्ड एट दिस प्रेजेंट टाइम पॉइंट इन टाइम, लेकिन स्टिल वी कैन टेक सम एडिशनल मेजर्स लाइक नमीर सेट के
आप मार्केटिंग बेहतर करें अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की, ठीक है, उनको ज़्यादा ऊपर लेके आएँ, बताएं लोगों को हो रहा है, ठीक है, तो उससे भी आपका एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है। तो विद दैट बीइंग सेड, आई वुड लाइक टू क्लोज दिस पॉडकास्ट 9, एंड आई होप के वी वर एबल टू increase your knowledge as far as the domestic cricket is concerned, even to a slightest bit। और आप लोग चलें और कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया तो हो कि हमारे सिस्टम में मसले क्या हैं और एग्जैक्ट इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ चाहिए। with that being said, thank you so much viewers, and don't forget to subscribe Sports Panther. See you all in the next one. Thank you. Bye. Bye bye. Bye.